So hello and welcome back again in the series of wireless communications lectures, and today's topic is comparison of various wireless communication systems. So in the picture you can see that comparison of mobile communication system is given and the base is mobile station. अब यहाँ पे मोबाइल स्टेशन का मतलब ये है कि a station which can move, which can mobile. Okay, so it is a portable station, it can be installed in the vehicle also. आप लोगों ने जर्नलिस्ट की रिपोर्टर्स की ओवी वैन्स को देखा होगा, वो भी एक मोबाइल स्टेशन के एग्जांपल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए डिफरेंट सर्विसेज हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल है, गैरेज डोर ओपनर है, पेजिंग सिस्टम है, कॉर्डलेस फ़ोन है, सेलुलर फ़ोन है। तो मोबाइल स्टेशन अगर हम उनको मान के चलें, मतलब अगर वो मूव कर रहे हैं ऐसा मान के चलें, तो फिर वो क्या क्या अलग अलग on the basis of the coverage range, required infrastructure, complexity, hardware cost, carrier frequency and the functionality. What are the difference between them on these particular heads? So let us see. So TV remote control का जो coverage range है वो low होता है obviously. Infrared structure जो है उसमें जो required है वो भी low है. Complexity भी उसकी low होती है और उसका hardware cost भी low है. Carrier frequency जो है उसमें इंफ्रारेड हम लोग यूज़ करते हैं। अब मोबाइल का कहने का मतलब ये हो गया कि आप जो है टीवी का रिमोट लेके आप कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं। सो यू आर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल टू द टेलीविजन एक्चुअली, या एंड सिमिलरली गैरेज डोर जो ओपनर है इसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक है जो टीवी रिमोट कंट्रोल में है ना, क्योंकि उसमें भी जो कवरेज रेंज है वो लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लो है, कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी भी लो होती है एंड हार्डवेयर कॉस्ट उसका भी लो है। करियर फ्रीक्वेंसी लेकिन इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टीवी रिमोट कंट्रोल। इट इज़ नियर अबाउट 100 मेगाहर्ट्ज, इन द रेंज ऑफ 100 megahertz. And yes, we are again transmitting the garage door opener signal to the garage door to open that. So functionality is again the transmitting. Now the paging system has the higher coverage range, higher infrastructure is required, complexity is not that much because it is the one-way communication. As I told you in the previous lecture, it was the example of the simplex communication. Hardware cost was also low. The carrier frequency was in the range of 1 gigahertz. Okay, and the functionality is of receiver. Okay, so there is a change here. We are receiving some signal in case of the paging system. Okay, now the cordless phone has the lower coverage area, it has the lower infrastructure requirement, complexity is moderate, hardware cost is also low, and the range, you can see the carrier frequency is around about the 100 megahertz. But the functionality is transceiver. Now they can transmit also, they can receive also. Okay, as I already told you about the cordless phones, that these are the the initial conception behind the cellular phones. सो सेलुलर फ़ोन की जर्नी के पहले जो कॉर्डलेस फ़ोन्स थे उन्हीं ने उनके इन्वेंशन ही डिसाइड किया कि भाई सेलुलर फ़ोन किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो सेलुलर फ़ोन के स्ट्रक्चर में आते हैं तो इनका जो कवरेज रेंज है वो ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा। हार्डवेयर कॉस्ट मॉडरेट है, कहना चाहिए हाई ही है। करियर फ्रीक्वेंसी जो है 1 गीगाहर्ट्ज़ तक एक्सटेंडेड है और ये भी जो है वो ट्रांस रिसीवर सिस्टम में बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो कंपैरिजन है सेम कंपैरिजन करेंगे, बट हम लोग अब चेंज कर देते हैं, अब मोबाइल स्टेशन ना करके उसको बेस स्टेशन में ले आते हैं। ठीक है, तो अब बेस स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए किस तरीके से चेंज आता है। नाउ द टीवी रिमोट कंट्रोल। ओके, नाउ टीवी रिमोट कंट्रोल अगेन लो 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 as we have seen in the previous slide, infrared frequency, but now the functionality is receiver. Now the functionality is receiver, so you can understand that if you are fixing the location of the TV remote control, then it acts as a receiver. इसको टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, है ना, तो टीवी एक बेस स्टेशन है समझ लीजिए, और आप टीवी रिमोट कंट्रोल से वहां से सिग्नल भेज रहे हैं, तो उसके लिए रिसीवर के जैसे काम कर रहा है।
ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड लाइकवाइज। गैरेज डोर ओपनर भी वैसा ही है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। पेजिंग सिस्टम में अब वहाँ पे रिसीवर था, अभी यहाँ पे ट्रांसमीटर है। ये थोड़ा सा चेंज है। उसका रीज़न ये है कि पेजिंग सिस्टम का जो बेस स्टेशन होता है वो होता है फिक्स, और वहाँ से हम चीज़ें ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम पेजिंग सिस्टम को बेस स्टेशन में वर्क करा रहे हैं तो हम लोग उसको ट्रांसमीटर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। और जब पेजिंग सिस्टम मोबाइल होता है, जो पिछली स्लाइड में था, तो वहाँ पे वो रिसीव ही कर सकता है, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता उस केस में। ठीक है, क्योंकि ये उसकी लिमिटेशन है। पेजिंग सिस्टम की लिमिटेशन यही है कि पेजिंग सिस्टम जो है वो एक तो एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट करेगा और उसका बेस स्टेशन हमेशा फिक्स रहेगा। हम उसके स्टेशन को मोबाइल नहीं कर सकते, हम व्हीकल में इंस्टॉल नहीं कर सकते उसको। Cordless phones and cellular phones, again the similar structures. No change is there in terms of the base station because they are trans receivers. They can receive and transmit the signals at the same time instant. Okay, so this is how the journey, you can say in the picture, it is being tried to show in a pictorial way कि भाई किस तरीके से जो है 1G, 2G, 3G and 4G का इवॉल्वमेंट हुआ। 1G में आप देख सकते हैं कि एक कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ कर रही है वो, है ना, अराउंड अबाउट 10-12 इंचेस हैवी फ़ोन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अराउंड अबाउट 1 kg 2 kg ऑफ द वेट। ठीक है, उसके बाद ये 2G में थोड़ा सा पोर्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई, साइज़ थोड़ा सा कम हो गया, है ना, हैंड हेल्ड होने लगे फ़ोन्स, है ना उन। ठीक है, फिर जब 3G में आए तो और इम्प्रूवमेंट हो गया उनकी कैपेसिटी में, उनके लुक में, उनके कहना चाहिए फैसिलिटीज़ में। And then when we talk about the 4G, you can see that the a person is just looking at the screen of his mobile continuously because a lot of data is there at the high speed. So we are enjoying the videos at the higher speed today. So this is happened because of the journey, or because of the progressive journey of the wireless communication. Okay, so people have put a lot of effort to make this thing possible. Yeah, so let us devote some time to this comparison chart, and this is, you can see, the last topic of your first unit syllabus. And you can see this chart is just representing the different points of comparison between 1G, 2G, 3G and 4G. 5G is not in your syllabus, but then also nowadays we are actually listening about the 5G. There is a buzz about the 5G. Buzz is the right word about the 5G. So it is important to include this also. Though in your examination you will be asked to compare between 1G to 4G only. Okay. Now, as far as the deployment is concerned, 1970 to 1980 was the year of 1G, and then 2G came between 1990 to 2001, then 3G after 2000 to 2010, and 2011 we can see the 4G, and 2015 to 2020 is the era of the 5G. Now, talking about the data rates, 2 kbps, then 14.4 to 64 kbps, 2 mbps, now up to 1 gbps in case of the 4G. Okay, and 1 gbps and higher speed will be there in 5G. Technology which was used in case of the 1G was analog cellular technology, and then in 2G digital cellular technology, packet data transmission, and then in case of the 3G digital broadband, CDMA was there, UMTS, Edge, all we discussed in previous lectures. 4G digital broadband packet data, WiMAX technology, LTE, which we use in our mobiles. Okay, and then in 5G there will be some other technology, some unified IP seamless combination of broadband of LAN, PAN, MAN and WLAN. So you will see, and I will also see what will be the changes in case of the technology. Okay, because it is new for us, and it has not been introduced in India. So if we talk about the services, 1G से लेकर के 5G तक के बहुत सारे changes आए. In case of the first generation, analog voice service was there.
Okay, no digital transmission, no data service was provided, no internet was there. In case of second generation, digital voice technology was introduced, MMS, and SMS was introduced. Higher capacity of packaged data was there. And in case of the 3G, enhanced audio video streaming quality was provided. Internet protocol has changed. Yeah, in case of the 4G, as we experience that enhanced audio video streaming technology is there, IP telephony is there, SD mobile TVs are there. And in future, when there is 5G, there will be 5G, we will see that dynamic information access will be provided. Dynamic information access means irrespective of the location and irrespective of the capacity, we can transfer and assign the data. Suppose I am in one place and after 5 minutes I will be in another place. So the dynamic information access at both the places is possible at the same speed. Okay, and dynamic means the information exchange is such that आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में शायद सुना हो या नहीं सुना हो, पेजिंग जो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम जब अलग अलग पेजेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो ये डायनेमिक रिलोकेशन भी वैसा ही होता है, डायनेमिक इंफॉर्मेशन एक्सेस भी ऐसा ही होता है। जो पेज जिस समय अवेलेबल हो वो उस पेज को रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। इसको वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट भी बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में, ठीक है। तो आप लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं। खैर, इतना इस पर इतना डिस्कशन नहीं करना है, वैसे भी 5G इज नॉट इन योर सिलेबस एंड द टेक्नोलॉजी इज न्यू, वी विल सी हाउ इट विल वर्क। Wearable devices will be there with AI. AI means artificial intelligence capabilities. हम लोग बैंड यूज करते हैं, हेल्थ बैंड, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं, हार्ट बीट से लेकर के बहुत सारी चीजें। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड जो टेक्नोलॉजी है वो और भी आएंगे आगे, जैसे जैसे 5G आगे बढ़ेगा। ओके, एंड वियरेबल डिवाइसेस होंगे, इसलिए मैंने आपको हेल्थ बैंड का एग्जांपल दिया। तो और भी नए डिवाइसेस आएंगे जो 5G इनेबल्ड होंगे। नाउ द मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्विचिंग, इफ यू टॉक अबाउट, फर्स्ट जनरेशन में FDM में यूज करते थे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड देन in case of the second generation, TDM CDMA यूज करने लगे। TDMA is nothing but the time division multiple access and CDMA is nothing but the code division multiple access। आप देखेंगे 2G के बाद से 3G 4G 5G में CDMA का ही यूज है। We will see when we will study about the modulation technique कि क्या multiple access में ये difference होता है और CDMA क्यों superior है as compared to TDMA and FDM and why we have adopted CDMA। Core network, if you talk about, in case of first generation there was PSTN, public switching telephony network। फिक्स्ड होते थे, कवरेज एरिया फिक्स था, फिक्स नंबर्स होते थे, ठीक है। उसके बाद पैकेट नेटवर्क आने लग गया 3G टेक्नोलॉजी में। 4G में जो है वो CDMA इंटरनेट, एंड 5G में भी इंटरनेट होने की वजह से जो अलोकेशन है वो हो जाता है डायनेमिक, ठीक है। मुझे अगर कोई नेटवर्क शेयर करना है या एक्सेस करना है, अगर वो इंटरनेट बेस्ड है तो उसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं उसको डायनेमिकली रीअसाइन भी कर सकता हूँ। ये पॉसिबल नहीं होता जब हम कोई डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड करते हैं, जैसे PSTN में होता, फिर हमको उस लाइन पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट जनरेशन में MTS, AMTS, IMTS यूज होते थे, ठीक। सेकेंड जनरेशन में ये हम लोगों ने सुना है GSM, देन GPRS, देन एज। जो इंटरनेट चलते थे उस समय पे 3G के पहले वो इसी पे चलते थे। 3G टेक्नोलॉजी जब आई तो IMT, 3.5G एंड 3.75G, जो HSDPA नेटवर्क एंड HSUPA नेटवर्क। ये HSDPA HSUPA के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से इसका फुल फॉर्म हाई स्पीड डेटा एक्सेस वाला ही होना चाहिए, बट देखेंगे कि अपलिंक एंड डाउनलिंक से कैसे रिलेटेड है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट इट। नेक्स्ट 4G की हम बात करें तो विच टेक्नोलॉजी वी यूज, WiMAX LTE टेक्नोलॉजी, हम लोग जो फोन्स में यूज करते हैं वो LTE टेक्नोलॉजी। 5G में जो है वो सिंगल यूनिफाइड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी होगी। अब कैसी होगी दैट वी विल सी। वेब स्टैंडर्ड थे, फर्स्ट जनरेशन में तो वेब अवेलेबल ही नहीं था, सेकंड जनरेशन में WWW वर्ल्ड वाइड वेब अवेलेबल हुआ, एंड देन इन केस ऑफ द थर्ड जनरेशन, अब इसने भी जर्नी की है अपनी, जो वेब डेवलपमेंट है, वेब प्रोटोकॉल से। तो आप देख सकते हैं 3G में और 4G में IP वर्जन 4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का 4th वर्जन।
एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द 5G, www के साथ एक और W ऐड होगी, it will be about इंटरनेट प्रोटोकॉल 6th वर्जन। ठीक है, अब ये कैसा होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। हैंड ऑफ की अगर हम बात करें, मैंने आपको हैंड ऑफ के बारे में बताया है पिछले क्लासेस में भी। हॉरिजॉन्टल हैंड ऑफ पॉसिबल था फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में, उसके बाद से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पॉसिबल होने लगा। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का क्या मतलब है भाई, एक अगर बेस स्टेशन एक कवरेज एरिया को आपने अगर डिफरेंट सेल्स में बांट दिया है, इफ यू डिवाइडेड इट and if you want that the signal or the data must be switched from one base station to another base station, so it can be your neighbor which is horizontally placed aligned to you, and it may be aligned vertically with your position. So horizontal access ही possible था 1G और 2G में, फिर बाद में इसको डायनेमिक कर दिया गया, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, आपकी पोजीशन से कहीं पे भी हो बेस स्टेशन, हम लोग को डेटा स्विच कर सकते हैं, सिग्नल स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो और स्ट्रेंथन किया गया इस हैंड ऑफ स्कीम को। शॉर्ट फॉल्स की बात करें, शॉर्ट कमिंग्स की बात करें, तो फर्स्ट जी में क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, लो कैपेसिटी था, अनरिलायबल हैंड ऑफ था, पुअर वॉइस लिंक, लेस सिक्योर। 2G में डिजिटल सिग्नल्स वर रिलायंट ऑन लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी, इट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स टू हेल्प मोबाइल फोन्स, ये उसकी कमियां थी। एंड इन केस ऑफ द 3G इट नीड टू अकोमोडेट हायर नेटवर्क कैपेसिटी, ये 3G जिसको 4G में जो है उसको दूर किया गया। तो 4G की जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो 3G से कहीं ज़्यादा है, बट ये अभी डिप्लॉयड है, हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके भी जो फ्लॉ है वो भी धीरे धीरे सामने आ ही जाएंगे। ठीक है, तो वो फ्लॉज यहाँ पे लिस्टेड आउट नहीं है। एंड देन इन केस ऑफ द 5G इट इज yet to be deployed, it is yet to be implemented, so we'll see how it will go. Okay, so this is all about the first unit of the wireless communication. Okay, I will share the list of the questions of the university, and then I will also tell how to attempt the paper as far as first unit is concerned. Okay, thanks for watching.